عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کی بڑی کمی سامنے آئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 22 روپے 43 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، تو عوام کے لیے یہ اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زین علی۔ جی زین، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ عوام کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، مشکل کی اس گھڑی میں اور مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے ریلیف کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 283 روپے فی لیٹر اور جبکہ ڈیزل جو ہے وہ 303 روپے فی لیٹر قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ شہری جو ہے اس حوالے سے بڑے ریلیف کے حوالے سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی مزید جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، اتنا بڑا ریلیف کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ جی بالکل، بہت اچھا ریلیف دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ پیٹرول کم کیا گیا، اسی طرح گھی، آٹا، چینی ان کو بھی سستا ہونا چاہیے، جس کے نیچے عوام پس رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کم ہو اور باقی چیزیں کم نہ ہو، باقی چیزیں ریلیف ملے تاکہ غریب آدمی کی پہنچ میں آ سکے چیزیں۔ باقی یہ آج کا جو ریلیف ہے یہ بہت اچھا ریلیف ہے، بہت اچھا پیکیج دیا انہوں نے۔ امید ہے کہ آئندہ نیکسٹ 15 دن بعد یہ 200 روپے پہ لیٹر پہ آئے، پھر اس سے بھی کم آئے۔ سر آپ بتائیے گا، حکومت کی طرف سے ریلیف دیا گیا، 40 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں۔ یہ بالکل چنگا کیتا گیا اور غریب نو بھی چیز کھان پینے چیز سستی کرنی چاہیے تے بہت لوگ غریب بجلی بالکل سستی کرنی چاہیے۔ یہ پیٹرول سستا کیتا گیا، بجلی سستی کرنی چاہیے تے غریب نو ریلیف کرنا چاہیے، بہت غریب نو۔ جی بالکل، شہری جو ہیں وہ اس بڑے ریلیف کے حوالے سے کافی خوش جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ کے اوپر موجود ہوں اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ قیمتیں سن کر ٹھیک شہری جو ہے وہ زین، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے رہے گا۔ عوام تو بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شاہ بخاری۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، کیا اس کے اثرات اب دکھائی دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک اچھا قدم ہے، اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ ایک بولڈ اسٹیپ لیا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت کے علاوہ ڈیزل میں اور مٹی کے تیل میں کمی کی گئی ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے اور جو فائدہ ہے وہ عوام تک پہنچنے کی توقع کی جانی چاہیے۔ اور اگر یہ ٹرینڈ روپی کی اسٹرینتھ ہونے کا جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمی کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی جو ہے پرائسز کچھ تھوڑی سی کمی کا اس میں بھی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے لیے، عوام کے لیے ایک خوشائند ہے، لیکن خاص طور پہ اس میں حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، جس میں کہ اس کا ایک اسٹیپ جو ہے وہ عوام کی جو ایک موجودہ مہنگائی کی وجہ سے جو تکلیف کا وقت ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت اس سے ایک اظہار ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو مزید اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچانے کے لیے کس نوعیت کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن کی طرح کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ کیسے اس کمی کو اپنے کرایوں میں کم کرتے ہیں۔ جب تک یہ کرایوں میں کمی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچے گا۔ تو لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسے امپلیمنٹ کروانا چاہیے فوری طور پر۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقتی طور پر یہ کمی کی گئی ہے یا بعد میں پھر قیمتیں بڑھا دی جائیں گی؟ ایک آپ کا ہر 15 دن بعد جو ہے ایک قیمتیں سیٹ ہوتی ہیں، اور اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو یہ قیمتیں ضرور نیچے آئیں گی۔ دونوں چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ ایک روپے کی اسٹرینتھ ہونا اور دوسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں قیمتوں کا کم ہونا، یہ دونوں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن ہر 15 دن بعد جو قیمتیں طے کی جاتی ہیں اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کا ہم پر اگر اثر ہوتا ہے تو وہ پاس آن کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ روپے کا جو اس وقت تسلسل نظر آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ 250 تک بھی روپیہ جا سکتا ہے، تو اس کا نیچرلی فائدہ جو ہے
वो फिर आवाम तक पहुंच सकेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है खाका नजीब माहिर मिर्शद ने। सर बताइएगा कि इसका रिलीफ आवाम को कितना पहुंच सकेगा? सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि पाकिस्तान में दो चीजें बहुत अहम हैं। हमारी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन जो है और हमारी जो बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स है, ये दोनों जो है ये फ्यूल पे हैं। इसलिए कि हम रेलवे से बहुत कम फ्रेट कैरी करते हैं, हम सारा फ्रेट कैरी करते हैं अपने जो रोड्स पे। इसलिए एक तो चूंकि ये कीमतें जब घटती हैं तो एक उसका लॉजिस्टिक्स पे, जो जब हम फूड कैरी कर रहे हैं, बाकी अशिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैरी कर रहे हैं, उस पे असर जाना चाहिए। दूसरा ऑफ कोर्स बहुत से, चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, बहुत से लोग जो ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं वो मोटर बाइक्स यूज कर रहे हैं। उन पे तो 48 रुपए का जो फर्क है वो कल से ही पड़ जाएगा या आज से ही पड़ जाएगा। सो इट्स अ गुड ओमन ओवरऑल। ठीक है, खाका नजीब अपनी राय से आगाह कर रहे थे और नासिर शाह बुखारी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेहोनियों का जबर तमाम हदें पार कर गया है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2300 से ज्यादा हो गई है। बच्चे और खातीन समेत 9000 जख्मी हो गए हैं, जबकि शहादतों की तादाद 3000 हो गई है। हमास ज़राए की जानिब से दावा किया गया, गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। लिबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक हो गया, जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गजा में इजरायली फौज ने कयामत बर्पा कर दी। इजरायली फौजी गजा की पट्टी पर तैनात, सैकड़ों टैंक भी गजा की तरफ रवाना। गजा के 10 लाख से ज्यादा रिहायशी बेयारो मददगार, बहरी और बर्री हमले भी जारी। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी रह गई। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल संगीन, जख्मियों के लिए बिस्तर कम पड़ गए, मैयतों को रखने के लिए जगह खत्म, मुर्दा खानों में रश लग गया। आइसक्रीम के ट्रक और फूड स्टोरेज की गाड़ियां मैयतों को मुंतकिल करने का काम करने लगी। फलस्तीनी वजारत सेहत के बयान के मुताबिक गजा के तकरीबन 70% लोग सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और फलस्तीनी वजारत सेहत ने अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील कर दी। गजा में सेहूनी फोर्सेज ने फजाई हमलों के बाद बहरी और बर्री हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजरायली फौजी गजा की पट्टी पर तैनात, सैकड़ों टैंक भी गजा की तरफ रवाना। इजरायली फौजी हुक्काम का कहना है कि जब तक गजा मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो जाता, हमले जारी रहेंगे। इसराइल हमास तनाज़ा खत्म करने का मिशन, आलमी हुक्मरानों की मुलाकातें और राब्ते जारी हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्री सदर से भी मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनाक की उर्दन के बादशाह के साथ अहम मुलाकात हुई है। आलमी सतह पर इसराइल फलस्तीन तनाज़ा हल करने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्तों में अब तेज़ी आ गई है, जबकि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, तो दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की है। सऊदी वली अहद ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के फौरी हल और जंगबंदी पर जोर दिया है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र का दौरा भी किया है। इसी तरह मिस्री सदर ने भी मुलाकात की है और जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। गजा में जारी इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती में रैलियां और मुजाहरे जारी हैं। अमरीका, बरतानिया, जापान, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, स्कॉटलैंड समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए गए। आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इसराइल की जानिब से गजा में बहरी, बरी और फिजाई हमले जारी। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां। अमरीका, बरतानिया, जापान, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, स्कॉटलैंड समेत दुनिया भर में सैकड़ों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। मुजाहरों में शरीक अफराद ने जुल्म का शिकार फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फिजाएं फ्री फ्री फलस्तीन की सदाओं से गूंज उठी। कनाडा, जापान, ट्यूनिस और स्कॉटलैंड में भी मुजाहरे। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली हमलों से शहीद होने वाले अफराद को खैराज अकीदत पेश किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो फौरन जंग बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें।
निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने फलस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत नस्ल कुशी करार देते हुए कहा है कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी मजम्मत करते हैं। जद्दा में फलस्तीन के हवाले से OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। CPEC मंसूबों में तेजी आने की नवीद। वजीर आजम पीर को चीन जाएंगे। मसला फलस्तीन पर मौकिफ नहीं बदला। मुल्क बदरी का फैसला अफगान शहरियों तक महदूद नहीं। निगरान वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि वजीर आजम के दौरा चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम में खसूसी शिरकत और आलमी रहनुमाओं और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करने के साथ साथ मुख्तलिफ मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। एक सवाल पर उनका कहना था कि CPEC में सुस्त रवि से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। CPEC is not going to be slowed down. It is, as a matter of fact, going to be put on the fast track, I can assure you. And this is the desire of not only Pakistan but also China as well. This is a very, very important thing. इसराइल फलस्तीन तनाज़े से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि फलस्तीन के मामले पर सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत किसी मुल्क का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। जो मेन कॉन्टूवर्स हैं उस 2-स्टेट सोल्यूशन के, जिसके अंदर pre-1967 बॉर्डर्स और अल-कुद्स अल-शरीफ एज द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट की बात है। ना सऊदी अरेबिया की पोजीशन में कोई तब्दीली है, ना ही किसी और इस्लामिक कंट्री की पोजीशन में तब्दीली है। 18 तारीख की जो मीटिंग हो रही है OIC, एक ही एजेंडा है उसका, फ़लस्तीनियन इशू का, कि किस तरीके से इजरायली एग्रेशन को बंद किया जाए, पैलेस्टीनियन राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, सीज़ फायर पे अमल दरामद कराया जाए, किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिसकी बहुत हद तक ज़रूरत है फ़लस्तीन के लोगों को, कि किस तरीके से उसको प्रोवाइड किया जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों को नहीं निकाला जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन को वीज़े जारी न करके नई रवायत डाली है, जिसकी ICC समेत कोई आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र अफगान पनाह गुज़ीनों को वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1530 अफगान तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान रवाना हुए गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई थी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। 14 अक्टूबर 2023 को कुल 1530 अफगान अपने मुल्क रवाना हुए। 1530 अफगान बाशिंदों में 392 मर्द, 257 खवातीन और 881 बच्चे बजरिया तुरखम बॉर्डर अफगानिस्तान रवाना हुए। ताहम अफगानिस्तान रवानगी के लिए 49 गाड़ियों में 152 खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। तुरखम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की रजाकाराना तौर पर वापसी का फैसला खुशाइंद है। रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने अपने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। याद रहे कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसने गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2021 में 10,31,757 अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया। यूरोपीय यूनियन, एजेंसी ऑफ असाइलम और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1.7 मिलियन अफगान शहरी बगैर किसी सबूत, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। ये 1.7 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन का मखसूस गिरोह है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और माली जुराइम के हवाले से सबसे बड़ा खतरा है। वाज़ेह है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई मोहलत में सिर्फ 16 रोज बाकी रह गए हैं। ताहम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बसूरत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे।